Viewers, this is me, Salman Hossain Abbasi. So today I have just bring the another topic from the English grammar. So today we are going to learn about the present simple tense. So first of all, I would like to give you some suggestions regarding the preparation of the teaching license exam, and it's a preparation. So it is not essential just we just do the practice on the pedagogy. So we have to cover up the all other subjects like English, science, mathematics, and also education pedagogy. So this is also the one of the part which will be given in the exam of the teaching license. Okay, so that's why I just thought myself that I should also give the some sort of the videos and points regarding the grammar sessions. Okay, so now we are going to start from the present simple tense. So here viewers, we are going to learn about the present simple tense, what he tells us, that how it works in our daily lives. So let's learn it from the very beginning. So look at the page. So the definition is given here. The present simple tense is used to talk about the daily routine, habits, facts, general truth, and permanent situations. So present simple tense shows that this sentence is used to talk about the daily routines. For example, what we do from the rising up in the morning and till the sleeping. So whatever the routines we have applied or we applied in our daily life, so it shows the daily routines in the present simple tense, habits, facts, general truth, and permanent situations. Okay, so I hope that you have understand. प्रेजेंट सिंपल टेंस ये हमें बता रहा है कि इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो हमारी डेली बेसिस पे रूटीन होती है, जो जो हम काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक जो हमारा काम होता है, वो इसको ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बयान करता है। हमारी हैबिट्स होती है जैसे कि रात को सोने से पहले दूध पीना, ठीक है। फैक्ट्स के कौन से होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ठीक है। जनरल ट्रुथ जैसे कि जो है ना हमारा सूरज ईस्ट से मतलब राइज अप होता है और सेट डाउन वेस्ट में होता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है। और एंड परमानेंट सिचुएशन, सो ये बता रहा है। अभी इजी फार्मूला इसका कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी शैल यूज़ इन द सेंटेंस, हाउ एंड इट वर्क्स, हाउ it works in the sentence. So let's see. So now here look at the sentences I, you, we, they. So all these are the pronouns that has been used in the sentences. I and we are the first pronoun, first person pronoun, and second person is a you, and third person is a he, she, it, or he, she, it, they. So all these are the third person pronoun. Okay, so here the sentences are given just like I play cricket, you read books, we go to school, so they eat rice. So all these sentences are very in a positive sense, affirmative sentences. All these are because in those sentences we do not use the negative or interrogative sentences. So that's why we call it as a अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसको हम इसलिए अफर्मेटिव बोल रहे हैं कि इसमें कुछ भी ऐसा कोई मतलब नेगेटिव या सवालिया निशान या सवालिया कोई भी जुमला इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह से हम यहाँ पर एक दूसरी पॉइंट कौन सी है, रिमेंबर, ये आपको याद करना लाजम है। विथ ही, शी, इट, एट्स, एस और ई एस टू द वर्ब। अब ये हमें बता रहा है कि जब भी ही, शी, इट प्रोनाउन जो है ना या सिंगुलर नेम जब भी इस्तेमाल हो प्रेजेंट सिंपल में, तो वो मेन वर्ब जो है ना वो अपने साथ एस लगाएगा और या आखिर में ई एस लगाएगा, ठीक है। ये बता रहा है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही प्लेज क्रिकेट। तो देखो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है, इसमें प्लेज में ये क्या बता रहा है कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम में ये मेन वर्ब में क्या लगा रहा है, एस लगा रहा है आखिर में। तो ये पॉइंट है। शी रीड्स अ बुक, ठीक है। ये इस तरह से हमें पढ़ना है, नॉट शी रीड अ बुक। ओके, इट वर्क्स वेल, इट वर्क्स, ये देखो आखिर में मेन वर्ब में क्या लगा रहा है, एस लगा रहा है। तो ये हमें याद करना है। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम्स ऑलवेज
प्रेसिडेंट विद द एस। ओके, सो डेली रूटीन, अभी ये डेली रूटीन को किस तरह से वो बता रहा है। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू डिस्क्राइब व्हाट वी डू एवरी डे। अभी ये बता रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से इस तरह से तब से मतलब ये बयान कर रहा है कि हम जो है ना डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, वो जो जो हम करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में ये बता रहा है। फॉर सपोज आई वेक अप एट 6 AM, तो ये मेरी क्या हो गई, डेली रूटीन है। ये मेरा डेली इस टाइम पे उठना बैठना होता है। आई ब्रश माई टीथ, मतलब ये क्या है कि ये मैं डेली करता हूँ। ठीक है, आई टेक अ बाथ है, मैं रोज़ डेली बेसिस पे जो है ना मैं नहाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, आई स्लीप एट 10 PM, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ या सो रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये डेली रूटीन, ये हमारी इस तरह से हम बयान करते हैं। और हैबिट्स प्रेजेंट सिंपल में हम किस तरह से हम बयान करते हैं, थिंग्स वी डू रेगुलरली, जो डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, वो यही बता रहा है कि हैबिट्स इस तरह से हम बयान करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, आई ड्रिंक अ टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह के टाइम पे चाय पीता हूँ। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरा अब्बू या मेरा पप्पा या मेरा अब्बा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, माई मॉम जो है ना अच्छा खाना पकाती है। आई टेक बाथ डेली इन द मॉर्निंग, मैं हर रोज़ सुबह नहाता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हैबिट्स में ये बता रही है चीज़। प्रेजेंट सिंपल का किस तरह से ये मतलब हो रहा है। जनरल ट्रुथ क्या है, थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, ये जनरल ट्रुथ में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि सूरज ईस्ट से जो है ना राइज अप होता है और उसके अलावा सेट डाउन वेस्ट में होता है, ये हो गया। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो हमारी ज़मीन है, धरती है जो हमारी, वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, फ़िश लिव इन द वाटर, ये वो ट्रुथ है जो हम कभी भी इसको जो है ना तब्दील नहीं कर सकते हैं। ये फ़िश लिव इन द वाटर, ये बिल्कुल इस तरह से ये मछली पानी में रहती है। वाटर बॉयल्स एट 100 सेंटीग्रेड, वाटर जो हमारा पानी है वो बॉयल होता है किस सेंटीग्रेड पे, 100 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये सारे जो जुमले हैं ये प्रेजेंट सिंपल में ये होते हैं। अभी फैक्ट्स किस तरह से ये बयान करता है। पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ये एक हकीकत है। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो ये बयान कर रहा है। इंग्लिश इज़ इन अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारा हो गया। इंग्लिश इज़ इन अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। कराची इज़ अ लार्ज सिटी, ये अभी क्या बता रहा है, मतलब ये परमानेंट सिचुएशन बता रहा है। परमानेंट सिचुएशन इसकी है, फैक्ट्स है। टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, ये टीचर मतलब क्या हो रहा है, टीचर इसमें जो उसके जो स्टूडेंट्स है, तालिब इल्म है जो उसकी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, अभी बनावट कैसे होगी स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल टेंस की। पॉजिटिव सेंटेंसेस, आई यू वी दे ही शी इट, तो आई वी यू दे अपने साथ एस या ई से नहीं लगाते आखिर में मेन वर्ब में। ही शी इट यहाँ पर क्या देखो एस आ गई है। ठीक है, ही शी इट आखिर में प्रेसिडेंट कौन सा है, एस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, नॉट अ प्ले थिंग दो। ठीक है, ही प्लेज इज अ वाइट सेंटेंस, शी प्लेज फुटबॉल, इट प्लेज अ फुटबॉल, नॉट अ प्ले, it play football. This will be wrong sentences. Okay, so now here the negative sentences are given, so let's see that how it has been used in the sentences. I, we, you, they always take it in the negative sentence. Do not, okay, do not play cricket, do not read the books, do not watch the TV. Okay, so ये हो गया। अगर ये do not भी हो या मतलब he she it, ये क्या लगाते हैं आप आपस में, इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस में नॉट है, और उसके अलावा मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब डू और डज इस्तेमाल होगा तो उसका फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। ओके, उसके जो आखिर में प्रेसिडेंट है, नॉट वी यूज़ द और एड द एस और ई एस इन द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट इन द मेन वर्ब। does not play cricket, does not cook today, so here he she it takes always takes does
not do. Okay, so all the remember the pronoun, remember those pronoun he, she, it, that who always take the does in the negative sentence. It does not, she does not play, he she does not play, he does not play, it does not play. ठीक है, ये हो गया इस तरह से. और इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ पर बता रहा है, आफ्टर यूज़ ऑफ डू आर डज यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर आप डू आर या डज इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब जुमले में जो भी हमें जुमला है या सवालिया आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद डू और डज जब भी इस जुमले में इस्तेमाल हो तो उसका मेन वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा. नॉट यू शैल यूज़ द एस और ई एस. ओके, so here the wrong sentence is also given, so right answer, right sentences are given, so we have to identify that which are the right answer and which is negative sentences or long sentences. Okay, so let's see. He does not play, he does not play. so यहाँ पर देखो मेन वर्ब में एस नहीं लग रही है. वो इसलिए एस नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर जो इसका हेल्पिंग वर्ब आया है नेगेटिव फॉर्म में, वो यहाँ पर एस यहाँ पर आ गई है, तो इसलिए मेन वर्ब में एस हम यूज़ नहीं करेंगे. ही डज नॉट प्लेज, अभी ये रॉन्ग सेंटेंस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है मेन वर्ब में, तो इसका मतलब ये जो बिलू जो राइट सेंटेंसेस लिखा हुआ है, तो इट मीन्स दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंसेस हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस एज एग्जाम्पल. ओके, सो सिग्नल वर्ड्स कौन से हैं, जैसे हमें ये मालूम हो जाए कि ये प्रेजेंट सिंपल मतलब एक पैराग्राफ जो आपको कोई दिया गया हो, तो उसमें आपको किस तरह से आप पहचानोगे कि ये पैराग्राफ प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है या. Let's see. These words often indicates the present simple tense. Every day, every morning, every week, always, often, usually, sometimes, never, daily, on Sunday. So all these indicators will tell you that this sentence has been used as a present simple tense. Let's see. I always pray. I always pray in the morning. I always pray daily. I always pray in the evening. I always pray in the night. Okay, so these words always shows here that this sentence has been used in the form of a present tense. So look at the sentence. Look at the second sentence. You usually drinks milk in night. She usually drinks milk in the morning. So now here drink is the main verb and she takes the s as a precedence in the main verb. Okay, so understanding. He never lies. He always take the s in the main verb. He never lies. Okay, ये सारे हो गए. अभी डेली लाइफ एग्जांपल्स मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि मॉर्निंग किस तरह से हम यूज़ करते हैं. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. डेली लाइफ एग्जांपल से आई प्रे फजर एट 5 o'clock, ये प्रेजेंट सिंपल में है. ठीक है. आई टेक अ शॉवर डेली इन द मॉर्निंग. अभी ये देखो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है, आई प्रे. प्रे इसमें हम प्रेज नहीं करेंगे, प्रेज उसमें होगा शी प्रेज. ठीक है. ओके, ठीक है यहाँ पर. और ही takes shower daily in the morning is the right answer. If I use it as a I takes, that will be a wrong sentence. Okay, so now I take shower daily in the morning is the right answer. प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी कैसे करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स. ही डैश टू स्कूल एवरी डे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गो टू लगाएंगे या गोस टू लगाएंगे. जो राइट सेंटेंसेस है आप मुझे देखकर इसमें जो ना वो फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लें. तो मुझे तो मालूम है कि यहाँ पर कौन सा लगेगा. दे डैश क्रिकेट एवरी मॉर्निंग. क्या यहाँ पर लगेगा प्ले लगे या प्लेज लगेगा. शी डैश टी एवरी मॉर्निंग. ड्रिंक लगे या ड्रिंक्स लगेगा. डज अली डैश इंग्लिश. स्पीक लगेगा या स्पीक्स लगेगा. ओके, सो ऑल दीज आर द प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन द एंड यू मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स those sentences and give the appropriate words in the spaces or the given here. So 5 sentences is also I dash my home work daily. I do my homework daily, or I does
माई होमवर्क डेली। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। आई होप दैट you have understand the first present simple tense and their examples with the facts and figures whatever we have learned about. So don't forget it. Don't forget to share it among your friends and सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा हम थम्स अप दें, कमेंट्स भी दें, जैसे मुझे मालूम हो कि मेरे जो अजीज़ व एलो अहबाब जो है मेरे, वो मेरा ये चैनल देख रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कुछ नया मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और मेरी यही हर वक्त जो है ना मतलब कोशिशें रहती हैं, काविशें हैं मेरी कि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।